so please check your email where the copy of the chapter is available with you. ठीक है, तो जो आपको चैप्टर की कॉपी जो है ना वो मिल जाएगी, ठीक है, जैसे आज हमने डिस्कस करना है क्लास के अंदर। और दूसरा ये है कि थोड़ा सा ना अभी अपने आप को ज़रा थोड़ा सा रेगुलर करें। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो कि इस क्लास के अंदर आना तशरीफ लाना पसंद नहीं करते। I think so that now the Institute of Management Sciences has formulated a strategy that if you people are not serious to take the classes, so then we also have to take the step in particularly at that point in time whenever we have to conduct your final examination. तो इस वजह से अब जो है ना मैं बैठा हुआ जो है ना ये आपके अटेंडेंस को जो है ना कंपाइल कर रहा हूँ। कि मैंने अटेंडेंस शीट ले ली है तो उससे फौरन पता लगना शुरू हो जाएगा कि अब जो है वो कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा, ठीक है। So you are required to please take care of all these things. Okay, if you are having any question relevant to the things which I have already discussed with you, you are welcome to ask a question. जी, कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों के कोई क्वेश्चन नहीं है आपका? सलमान यूसुफ कह रहे हैं क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर सर। जी ते जान दे प्रोग्राम बन रहा है शाम ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਖਰੇ ਕਰ हैं जी, तड़के ਦੀ मैं सुन नहीं दे रही है ये गल। जरा ऊंची बात करेंगे, क्या कहते हैं? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਟੀਵੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਲੈ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਭਾਈ ਲਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਹੈਂਡ ਲਾ ਲਾਂਗਾ। ਲੈ ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਾ ਦੇਖੋ ਹੋਵੇ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਲੈਂਦਾ ਆ ਗਈ ਭੈਣ ਦੀ ਚੁੱਲ ਕਲਾਸ ਹੀ ਹੋ कोई बाबर अली अपना माइक बंद करो। ਕਈ ਜੀਤ ਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੰਡੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੀਪ ਲੈਣੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਅਭੀ ਗਲਾਸ ਚ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਢੂਏ ਜੀ ਵੜ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਅਗੇ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾ ਲੈ ਲਈ ਹੁਣ। Okay, if you people are having any questions relevant to the things which I have discussed with you in the last session, you are welcome to ask the question. Otherwise, I will move forward. Fine. तो फिर हम चलते हैं आगे की तरफ अगर आपने कुछ नहीं पूछना है। चलें जी, ठीक है। Up till now, I have discussed with you the concept of that is your current asset and current. You can say that current asset as well as the non-current asset. ठीक है. Now I am moving toward that is the right hand side of the balance sheet, which is indicating something about the liabilities. Fine. हमारे पास यहाँ पर जो liabilities होंगी वो two sorts of liabilities हैं. So let's see that what are the liabilities which are available with us. चलें जी, सबसे पहले वो डिस्कस करता है हमारे से कॉन्सेप्ट डिस्कस करता है जी एक कि द नेचर ऑफ द लायबिलिटीज। ओके, तो यहाँ पे है कि लायबिलिटीज में भी डिफाइन एज डेट और ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट ट्रांजैक्शन और इवेंट्स and requiring settlement at a future date. All liabilities have a certain characteristics in common. However, the specific terms of different liabilities and the rights of the creditors vary greatly. ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहली बात जो है वो क्या कहता है कि liabilities are going to be produced at that point in time if you have made any kind of transaction or if some of the event that has already been occurred in the past, but these are the claims to whom you have to satisfy in the future. Okay, और दूसरी बात जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट कहता है कि तमाम लाइबिलिटीज के कुछ ना कुछ सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है,
some of the characteristics are common. However, some of the characteristics will be the special. So whenever you are going to enter into an agreement, at that moment, some of the terms and condition might be common and some of the terms and condition might be very much specific. Okay, and that terms and condition vary from agreement to agreement. Okay. अब यहाँ पे सबसे पहले बात करता है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन यू कैन से दैट योर डेट एंड इक्विटी, के डेट और इक्विटी के अंदर बुनियादी तौर पे क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है. सो वी आर गोइंग टू यूज द टर्म ऑफ डेट, ठीक है, फॉर दोज we are going to use the term of debt for the obligations, ठीक है. However, the term equity is going to be used for the contribution made by the owner in the business, ठीक है. तो जो हमारा डेट होता है इस केस के अंदर जो एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है वो क्या होता है, दैट इज द एलिमेंट ऑफ द इंटरेस्ट, ठीक है. सो इफ द कंपनी इज गोइंग टू बोरो मनी, ठीक है, either from the bank or from the public, fine. In both of the cases, the company is required to satisfy the claim of the parties, fine. So the company will have to make the principal payment as well as the company will have to make the interest payment, okay. So principal payment is becoming a cause of reduction in the amount of loan. However, the distribution of interest is, you can say that this is the cost of loan. This is the cost of loan, okay. So interest is going to represent the cost of loan, ठीक है. और interest is also considered as a tax deductible expense, mean that the company which is going to use the debt in its capital structure, they are required to pay the interest, and due to the interest, the company is going to avail the tax concession, ठीक है. And third important thing is that the interest payment to the, you can say that lender is the mandatory, okay. Mandatory basically mean it is the legal liability of the company to satisfy the claim of the lender in the form of interest payment, okay. So if the company is not able to satisfy the claim of the lender, fine, on short-term basis, it is called as insolvent. And if the company is not able to satisfy the claim of the, you can say that investor in form of what, on long-term loan, then that company may enter into a bankruptcy. तो यहाँ पर दो terminologies हैं जिसको आपने word use करना है. One is the word of insolvent, INSOLVENT. Insolvent का word उस वक्त use किया जाता है when the company is going to commit a default on short-term basis. If the company is going to commit a default on long-term basis, so then we are going to use the term of the bankruptcy, okay. तो debt का characteristics क्या है? One thing is that it is the liability of the company to satisfy the claim of the debt holder on priority basis. Interest payment is considered as fixed, okay. Interest payment is considered as fixed, okay. If the company is unable to satisfy the claim, fine, of the investor on short-term basis, then that company will be considered as insolvent. If the company is unable to satisfy the claim of the long-term lender, fine, so then it will be considered as a bankruptcy, okay. उसके बाद क्या कहते हैं, next is that is that every loan is having a fixed maturity, mean that, ठीक है, every loan is having a fixed maturity, fine, and this is the maturity when the company will have to pay back the principal to the lenders, okay. तो ये बुनियादी तौर पे कुछ basics हैं. However, in case of equity, ठीक है, equity is going to indicate the money contributed by the, what we can say that by the owner. Hello. ठीक है. हेलो. ठीक है जी. इक्विटी का वर्ड हम उस वक्त यूज करते हैं when the contribution is made by the owner. Second important thing is the distribution of profit to the owner is not mandatory, okay. And the third important thing is that is the rate at which a profit is distributed among the owner is the variable, ठीक है. However, the rate at which the interest is distributed among the lender is the fixed, okay. This is the basic difference between the, you can say that your debt and equity, ठीक है. और इसके अंदर फिर हमारे पास जो है वो एक होता है कि sometime what we can say that whenever we are going to borrow money from the bank, then the bank is going to demand us a collateral, ठीक है. तो such kind of loan is called as collateralizable loan, ठीक है. So this collateral is giving a sense of security to the lender that if the borrower is going to commit a default,
If the borrower is going to commit a default, then lender is having an option to sell the property in the market just in order to satisfy his personal claim. ठीक है, तो ये एक important चीज है जिसे आपने अपने ज़हन के अंदर रखना है. ठीक है, फिर वो कहता है many liabilities bear interest, कि most of the liabilities जो होते हैं दो किस्म के लोन होते हैं. ठीक है, so one type of a loan is based on one thing, that is वक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना. ठीक है, तो जिसे हम कर्जा हसना कहते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि यू आर बोरिंग मनी फ्रॉम समवन एंड देन यू विल हैव टू रिटर्न इट बैक द प्रिंसिपल टू दैट पर्सन. दे आर नॉट गोइंग टू डिमांड एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू दैट यू आर रिक्वायर्ड टू पे द इंटरेस्ट ऑन द लोन. ओके, तो ये जो हमें जो है वो क्या जो हबीब बैंक है या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है या एमसीबी बैंक है, आइदर दे आर रेडी टू ऑफर अस द loan on either they are ready to offer us the Qarza Hasana. No, they are always going to charge the interest. ठीक है, because their job is that to sell their job is to earn the money. Okay, फिर उसके बाद next वो कहता है next is the concept of estimated liability. Most liabilities are for a defined dollar amount clearly stated by the contract. Example include note payable, account payable, accrued expenses such as interest payable, salary payable. In some cases, however, the dollar amount of a liability must be estimated at the balance sheet date. Estimated liabilities have two characteristics. The liability is known to exist and the precise dollar amount cannot be determined until the later date. For instance, automobiles sold by most automakers are accompanied by a warranty obligation. The warranty obligation, the automaker to replace a defective part for a period several years. Fine. As each car is sold, the automaker incurs a liability to perform any work that may require under warranty. The dollar amount of liability, however, can only be estimated. ठीक है, देखें बात ये होती है यहाँ पे liabilities, ठीक है, और कुछ हमारे पास होती हैं estimated liabilities. अब ये जो एस्टिमेटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया, क्या आया, उसने कहा लेट्स सपोज दैट इफ यू हैव परचेज अ न्यू मोबाइल फोन फ्रॉम द मार्केट. ठीक है, तो आप फौरन से जो सेलर होता है उससे पूछते हैं कि भाई इसका गारंटी कार्ड किधर है, वारंटी कार्ड किधर है. सो if something is happening wrong with you, so then you can present that warranty card and then that company will have to offer you the service. ठीक है, but the point over here is that is whenever a company is going to sell the product at that point in time, what probability exists that this much number of customer will claim some kind of demand. So means that the company is not sure about it, because if any kind of defect arise, then the purchaser of the commodity will have to contact with the company. But if no defect arise, fine. So then what is going to be happen? Then that party is not going to be contact with the company. So that is why the companies are going to make an estimate about the liabilities by the end of every period whenever they are going to prepare the balance sheets. जी भाई, मेरी बात समझ लग रही है आप लोगों को? या सारे जो है ना नींद में सो रहे हो? 35 लोग जो है, 34 लोग इस क्लास के अंदर जो है. जी सैयद मोहम्मद कहता है वाह जी वाह, सबको समझ लगनी शुरू हो गई है. वेरी गुड है. पढ़ाने वाले को नहीं समझ आ रही, लेकिन पढ़ने वाले को समझ आई जा रही है. पता नहीं क्या बात है. चलो अच्छी बात है. ठीक है, तो हमारे पास दो किस्म की लायबिलिटीज होंगी. पहले कहता है कि मैनी लायबिलिटीज बेयर द इंटरेस्ट. ठीक है, तो यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसे आप लोगों ने अपने ज़हन शरीफ के अंदर रखना है कि वो बुनियादी तौर पे क्या है कि जो लोन्स होते हैं उनके दो टाइप्स होते हैं. ठीक है, एक लोन्स होते हैं जिसे हम कहते हैं नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग लोन. ठीक है, और एक को हम कहते हैं इंटरेस्ट बेयरिंग लोन. तो जो नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग लोन होता है वो बुनियादी तौर पे क्या कह सकते हैं, कैन बी एन एग्जांपल ऑफ कर्जा हसना. ओके, और जो इंटरेस्ट बेयरिंग लोन होता है, दिस इज अ कमर्शियल लोन वेयर द लेंडर वुड लाइक टू चार्ज अ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट. ओके, वेयर द लेंडर वुड लाइक टू चार्ज अ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट. ओके, तो ये हमारे पास है. दैट इज कहता है कि मैनी लायबिलिटीज बेयर इंटरेस्ट एंड मोस्ट ऑफ द लायबिलिटीज दे कंटेन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है कि हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं एस्टिमेटेड लायबिलिटीज. ठीक है, ठीक है, और एस्टिमेटेड लायबिलिटीज के उसने दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताए हैं. ठीक है, कहता है एस्टिमेटेड लायबिलिटीज हैव टू बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स. द लायबिलिटी इज नोन टू एग्जिस्ट. इसका मतलब है कि इस लायबिलिटी का वजूद है एंड द प्रिसाइज डॉलर अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमिन. ठीक है, लेकिन इसकी ऐसी लायबिलिटी जिसका वजूद है लेकिन
उसकी प्रिसाइज अमाउंट को डिटरमिन नहीं किया जा सकता। उसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि लेट्स सपोज यू हैव परचेज एज अ स्मार्टफोन ऑफ सैमसंग, ठीक है, and they have given you a warranty card that if something is going to be happen wrong, then you can contact with the company and company will be able, the company is liable to replace the worn out part with the new one so that you people won't face any kind of difficulty, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि दैट इज इफ अ फॉल्ट अराइज देन यू हैव टू कॉन्टेक्ट विद द कंपनी, बट इफ द फॉल्ट इज नॉट अराइव विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड देन यू डोंट हैव टू कॉन्टेक्ट विद द कंपनी, ठीक है। फिर आप कंपनी के साथ राब्ता नहीं करेंगे, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, तो देन यू हैव टू कॉन्टेक्ट विद द कंपनी एंड कंपनी विल हैव टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, बट इन दैट प्रॉब्लम how much money will be spent, the company is not sure about it. So that's why what the companies are going to do it, the companies are going to keep the record of the estimated liability in their books of account, ठीक है। तो ये चीज है जिसे आपने अपने ज़हन शरीफ में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है कि करंट लायबिलिटीज, ठीक है। Current liabilities are obligations that must be paid within a year or within the operating cycle, whichever is longer. Another requirement for classification as current liability is the expectation that the debt will be paid in the form of current asset, take care or through the rendering of services. Liabilities that do not meet these conditions are classified as long-term liabilities, ठीक है। तो पहले उसने ये कहा कि those obligation which you must have to satisfy within a year or within the operating cycle, whichever is longer, ठीक है। अब साल क्या होता है और ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, ठीक है। There are two main components of the operating cycle. One is called as the average age of inventory and second is called as your average collection period. आसान लफ्जों के अंदर अगर मैं आपको ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँ तो मैं इसे कुछ यूं समझा सकता हूँ कि we are going to purchase a commodity from the market, then we have to hold the product in our shop and then we have to wait for the customer and then we have to sold the commodity to the customer. If we are selling a product on account receivable, then inventory will become the part of account receivable and ultimately we have to convert the receivables into cash. तो जिस दिन हम इन्वेंट्री को लेके आए और जिस दिन हमने इसको कैश में कन्वर्ट किया, तो ये जो सारा टाइम पीरियड था, दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल। तो इसने क्या कहा कि दोज ऑब्लिगेशन व्हिच एन एंटिटी विल हैव टू पे आइदर विद इन द ईयर और विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, whichever is longer is considered as a current liability. फिर उसने करंट लायबिलिटी का और जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, another requirement for classification as current liability is the expectation that the debt will be paid from current assets, ठीक है, ठीक है, कि डेट को जो पे बैक किया जाए वो किससे पे बैक किया जाए, थ्रू योर करंट एसेट। लायबिलिटीज दैट डू नॉट मीट दिस कंडीशन आर क्लासिफाइड एज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ओके। द टाइम पीरियड यूज्ड इन डिफाइनिंग द करंट लायबिलिटीज पैरेलल चलें, ठीक है, ये हमने इसमें देख लिया है। कहता है अमंग द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ करंट लायबिलिटीज आर अकाउंट पेबल, शॉर्ट टर्म नोट्स पेबल एंड करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट एंड एक्रूड लायबिलिटीज एंड दिस एंड दैट आर कंसीडर्ड एट दिस वन। चलिए, अब बीइंग एज ए स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, हमारे पास दो किस्म की फाइनेंसिंग होती है। एक को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग। क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग एंड सेकंड इज कॉल्ड एज अ डिस्क्रिशनरी फाइनेंसिंग। डिस्क्रिशनरी फाइनेंसिंग, ठीक है। स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग क्या होती है कि व्हेन सम ऑफ द ऑब्लिगेशन अराइज एज अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, जब लायबिलिटीज जो हैं ऑटोमेटिकली वजूद के अंदर आ जाएं, ठीक है, जब लायबिलिटीज क्या करें ऑटोमेटिकली वजूद के अंदर आ जाएं, तो सच काइंड ऑफ फाइनेंसिंग इज कॉल्ड एज अ स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग। Spontaneous financing basically means that those economic obligations that arise as a part of the normal business activity. Okay. Second characteristic spontaneous financing का क्या है? There is no explicit cost associated with this source of finance. However, there is an implicit cost. कहता है कि इस सोर्स ऑफ फाइनेंस के साथ क्या है कि कोई एक्सप्लिसिट कॉस्ट एसोसिएटेड नहीं है। इसका मतलब है इट इज अ फ्री सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। However, there is an implicit cost associated with this source of finance. अब वो क्या है? फॉर इंस्टेंस स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग में हमारे पास तीन एग्जांपल है। वन इज कॉल्ड एज योर अकाउंट पेबल, सेकंड इज कॉल्ड एज योर एक्रूड एक्सपेंसेस एंड थर्ड इज कॉल्ड एज योर अनअर्न्ड रेवेन्यू। अनअर्न्ड रेवेन्यू, ठीक है। अब अकाउंट पेबल कब पैदा होते हैं? whenever you are going to buy the inventory on credit basis and to purchase the inventory on credit basis is your routine task, ठीक है। And you are not required to pay an interest on this part of the loan. You are not required to pay an interest on
दिस पार्ट ऑफ द लोन, ठीक है। तो इस पार्ट ऑफ लोन पे आपको किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ता, ठीक है। और तीसरी चीज ये है कि ऑल्दो देयर इज नो एक्सप्लिसिट कॉस्ट, हाउएवर देयर इज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। अब वो इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है कि लेट्स सपोज व्हेन यू आर गोइंग टू बाय अ कमोडिटी ऑन क्रेडिट बेसिस, ठीक है। लेट्स सपोज यू हैव परचेज अ प्रोडक्ट अंडर अ क्रेडिट टर्म ऑफ 2, 10 and 30, ठीक है। तो अब इसमें उसने क्या कहा कि the seller of the product has given you an option that if you have satisfied the claim of the seller within 10 days from the date of purchase, then seller is ready to offer you a 2% discount, ठीक है। If the cash is available with you, then you can take the benefit of this opportunity. Otherwise, you will have to lose it. So whatsoever the benefit which you are going to lose in this process, this is called as the implicit cost associated with this source of finance, okay। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास जो सोर्स आता है स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग में, सबसे पहले उसे कहते हैं अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल ऑफन आर सब डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज ऑफ ट्रेड अकाउंट पेबल एंड अदर अकाउंट पेबल, ठीक है। तो सबसे पहले उसने ये बताया कि दो किस्म के अकाउंट पेबल होते हैं, एक को हम कहते हैं ट्रेड अकाउंट पेबल, दूसरों को कहते हैं अदर अकाउंट पेबल। ट्रेड अकाउंट पेबल का जो पर्टिकुलर ताल्लुक है वो किसके साथ है कि when you are going to buy the goods on credit, when you are going to buy the goods for the sake of sale in the market, फाइन ऑन क्रेडिट, कि जब आप ऐसा सामान तिजारत जिसको आप खरीदते हैं बेचने के लिए, जब आप वो उधार से खरीदेंगे तो उस वक्त ये अकाउंट ट्रेड पेबल जो है ट्रेड अकाउंट पेबल पैदा होंगे। एंड अदर अकाउंट पेबल्स आर इन एडिशन टू दैट, इसके अलावा अगर कोई आपने किसी पार्टी को अदायगी करनी है तो इट विल बी कम अंडर द हेड ऑफ अदर अकाउंट पेबल। फॉर इंस्टेंस, आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल मिल गया है लेकिन अभी तक आपने अदा नहीं किया, ठीक है, तो अगेन दिस विल बी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अदर अकाउंट पेबल, ठीक है। इसी तरह से आप पे को रेंट ड्यू हो गया है, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी है, आप पे को रेंट ड्यू हो गया लेकिन अभी तक आपने अदा नहीं किया हुआ, तो ये अदर अकाउंट पेबल की कैटेगरी में आएगा। ट्रेड अकाउंट पेबल एंड शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन टू सप्लायर फॉर परचेज ऑफ मर्चेंडाइज। अदर अकाउंट पेबल इंक्लूड लायबिलिटीज फॉर एनी गुड और सर्विसेज अदर देन मर्चेंडाइज, के मर्चेंडाइज के अलावा जो हमारी लायबिलिटीज होती हैं ये बुनियादी तौर पे ऐसा होता है। अब वो कहता है कि लायबिलिटी जन्म कब लेती है। टेक्निकली द डेट एट व्हिच द ट्रेड अकाउंट पेबल कम इनटू एग्जिस्टेंस डिपेंड अपॉन वेदर यू हैव परचेज अ गुड्स ऑन एफओबी शिपिंग पॉइंट और यू हैव परचेज अ प्रोडक्ट ऑन एफओबी डेस्टिनेशन पॉइंट। अब वो ये आपको समझाना चाहता है कि if you have purchased a product on FOB destination point, mean that unless or until you are actually going to receive the goods, it will not become your liability, okay? But if you have purchased a good on FOB shipping point, so once the goods have been delivered by the seller on the port, it becomes the property of the buyer and it becomes the legal liability of the buyer to satisfy the claim of that particular party, ठीक है। तो ये बुनियादी तौर पे है, दिस इज द अकाउंट पेएबल, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो लायबिलिटी शॉर्ट टर्म में आ रही है नोट्स पेएबल है, ठीक है। अब ये जो नोट्स पेएबल है, नोट्स पेएबल इज कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द डिस्क्रिशनरी सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। Note payable doesn't come under the heading of spontaneous financing, it comes under the heading of discretionary financing. Discretionary का basic meaning क्या होता है कि when you would like to use your discretion, when you would like to use your power, when you would like to use your will, when you would like to use your wish, ठीक है, this is called as a discretionary, this is called as a discretionary, ठीक है। So discretionary financing does not originate automatically, ठीक है, discretionary financing does not originate automatically. Second thing is there is an explicit cost associated with the source of finance, ठीक है। तो ये जो नोट पेएबल होते हैं ये ऑटोमेटिकली पैदा नहीं हो जाते हैं, ठीक है। अकाउंट पेएबल ऑटोमेटिकली पैदा हो सकते हैं बट नोट्स पेएबल विल नॉट बी, यू कैन से दैट, क्योंकि नोट्स पेएबल के अंदर द परचेजर इज रिक्वायर्ड टू साइन अ नोट। सो व्हेन परचेजर इज रिक्वायर्ड टू साइन अ नोट एट दैट मोमेंट, if he wish he can sign the note, but if he don't like or don't wish, he cannot sign the note. So when you are using your wish, then it becomes the discretionary source of finance, okay. And second important thing in it is that there is some explicit cost associated with this source of finance, as you people have already studied in the subject of chapter number 6, that was about the note receivable, ठीक है। तो अगर बायर के लिए जो अगर सेलर के लिए नोट रिसीवेबल था तो बायर के लिए वही चीज क्या थी, नोट पेबल। अगर सेलर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था तो उसके लिए इंटरेस्ट रिसीवेबल था, तो जो दूसरी पार्टी अगर उसने अदायगी करनी है तो उसके लिए इंटरेस्ट पेएबल था, ठीक है। सो नोट पेएबल आर इशूड व्हेनेवर बैंक लोन्स आर ऑब्टेन। तो नॉर्मली वो कहता है कि नोट पेएबल उस वक्त इशू किए जाते हैं जब आप बैंक लोन लेते हैं। तो बैंक लोन बुनियादी तौर पे बैंक लोन के वक्त क्यों इशू किया जाता है, नोट पेएबल इज गोइंग टू बी ओरिजिनेट एट दैट मोमेंट व्हेनेवर द बोरोर इज गोइंग टू मेक अ प्रॉमिस
with the lender to pay back the money after a particular time period. Okay. Other transactions that may give rise to note payable include the purchase of real estate, costly equipment, the purchase of merchandise, and the substitution of note of past due account payable. या माजी की लाइबिलिटीज को साइन करने के लिए, माजी की लाइबिलिटीज को ऑफसेट करने के लिए नोट साइन किया जाता है। या प्रॉपर्टी खरीदें तब नोट क्या कहा जाता है, जब कॉस्टली इक्विपमेंट खरीदें तो उस वक्त हम तहरीरी वादा करते हैं कि जनाब मैं वादा करता हूँ आई विल पे बैक द मनी to this particular company along with the amount of interest charged by the seller of the product in this process. Normally the interest rate is stated separately from the principal amount of the note. ठीक है, just like एक example दिए to illustrate, assume that on November 1 Porter company borrowed 10,000 from its bank for a period of 6 months at an annual interest rate of 12%. 6 months later on May 1 Porter company will have to pay the bank the principal amount of 10,000 plus इंटरेस्ट। तो 10,000 प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम का फॉर्मूला है जो कि आपने चैप्टर नंबर 6 में भी पढ़ा हुआ है। तो 10,000 है, 12% है, 6 by 12 कैलकुलेट करेंगे 600। एज एन एविडेंस ऑफ दिस लोन द बैंक इज रिक्वायर पोर्टर कंपनी टू इश्यू नोट पेबल सिमिलर टू दिस वन। तो ये जो है पोर्टर कंपनी ने नोट जारी कर दिया है, ठीक है, जिसमें जो है वो क्या करेंगे, अब इसकी ट्रांजेक्शन क्या होंगी। जिस वक्त आप पैसा बोरो करेंगे तो कैश डेबिट एंड नोट पेबल क्रेडिट, ठीक है, और उसके बाद जो है ना आपने ये लोन लिया था नवंबर 1 को, ठीक है, तो 29 डेज ऑफ नवंबर एंड 31 डेज ऑफ दिसंबर है, टोटल 60 डेज का इंटरेस्ट बनता है। तो अब आपको क्या करना है कि इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। यू आर गोइंग टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31st ऑफ दिसंबर। तो 2 महीने का इंटरेस्ट आप पे ड्यू हो चुका है जो कि आपने अदा नहीं किया, तो ये आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बन जाएंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। और जिस वक्त यकम मई आएगा तो उस वक्त आप ट्रांजेक्शन करोगे नोट पेबल डेबिट बाय 10,000, इंटरेस्ट पेबल डेबिट बाय 200, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट बाय 400 एंड कैश इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड बाय 10,000 and 600. Okay, चले, okay, if you want to ask any question till now you are welcome to ask the question. जी, आपका कोई सवाल है? भाई, the dead peoples है, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है? क्या कहते हैं सैयद मोहम्मद, क्या कहते हैं? नो सर, वेरी गुड है। क्या हुआ, मुझे बड़े अच्छे बच्चे लगते हो आप, कहते हैं नो नो क्वेश्चन सर एट ऑल। चले जी, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि अब हमारे पास क्या है, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, इसे करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट भी कहते हैं, ठीक है। तो कहता है कि सम लॉन्ग टर्म डेट सच एज मॉर्गेज लोन पेएबल आर इन अ सीरीज ऑफ मंथली और क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। इन दीज केसेस द प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू विद इन अ ईयर, ठीक है, और द ऑपरेटिंग साइकिल इज रिगार्डेड एज अ करंट लायबिलिटी एंड द रिमाइंडर ऑब्लिगेशन इज क्लासिफाइड एज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है। आसान सी बात ये है कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का वो हिस्सा जो करंट डेट के अंदर ड्यू है, जो वाजिबुल अदा है, ठीक है, उसको बुनियादी तौर पे करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट कहते हैं एंड इट विल बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द करंट लायबिलिटी, रादर इट शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ओके, द पार्ट ऑफ the fraction of the long term loan which is due in the current year, the fraction of the long term loan which is due in the current year is considered as a part of the current portion of the long term debt, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है ट्रूथ लायबिलिटीज, जिससे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट येट पेड, ठीक है। जस्ट लाइक अभी हम एक एंट्री करके आए थे इंटरेस्ट एक्सपेंस टू इंटरेस्ट पेएबल, यहाँ पे 2 महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो गया है लेकिन अभी तक हमने अदा नहीं किया, बट वी विल मेक अ पेमेंट ऑन द 1st May ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो इसका मतलब है कि whatsoever the amount of interest which you would like to require to report in your books of account just in order to fulfill the requirement of matching concept will be considered as what? That is your outstanding liability. तो ये जो outstanding liability होती है ये क्या होती है? Again it will be considered as a part of your spontaneous financing. Again it will be considered as a part of spontaneous financing. ठीक है? For instance that as you have received the electricity bill, ठीक है? तो electricity bill क्या आना जो है मामूल की बात है, ठीक है? लेकिन as you have received the electricity bill, it becomes your liability to satisfy the claim of the वापदा, ठीक है। If you are going to close the books of account, then you must have to record this expense in your financial statement. Otherwise, this expense will be deferred into the next period, and in this way, what is going to be happen that this year income statement will be understated, and the future income statement will be this year income statement will be overstated, and the future year income statement will be understated. Okay. Accrued liabilities arise from the recognition of expense for which payment will be made in the future period. Thus, accrued liabilities are also called accrued expenses.
Example of accrued liabilities include the interest payable, income taxes payable, a number of liabilities relating to payroll. Payroll तनख्वाहों को कहते हैं. As accrued liabilities stem from the recording of expense, the matching principle governs the timing of their recognition. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज था. उसके बाद ये पेरोल लाइबिलिटीज होती हैं, बुनियादी तौर पे इनका ताल्लुक होता है, कहता है कि डिस्क्राइब द कॉस्ट रिलेटिंग टू पेरोल. ठीक है, जो आपका जो तनख्वाह बनती है उसे. The preparation of a payroll is a specialized accounting function beyond the scope of this text, but we believe that every business student should have some understanding of the various costs associated with the payroll. Every employer must compute, record, and pay a number of costs in addition to the wages and salaries owed to the employees. In fact, one might say that the total wages and salaries expense represent only the starting point of payroll computation. To illustrate, assume that a manufacturing company employs 50 high-skilled factory employees. If monthly wage for this workforce average 1 lakh, the cost incurred by this employer in a typical monthly payroll might follow. Gross pay की बन गई 1 lakh, उसके बाद सोशल सिक्योरिटी एंड मेडिकेयर टैक्सेस आ गए, फेडरल एंड सेल टैक्स, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, उसके बाद है वर्कर. तो ये बुनियादी तौर पे जो कंपनी अलाउंसेस देती है और जिस तरह उसके बाद तनख्वाह बनती है, तो ये बेसिकली उसका स्ट्रक्चर है. तो ये हमारे टैक्स का हिस्सा नहीं है, अभी हमने इसको इतने डिटेल से नहीं पढ़ना कि ये पेरोल का कॉन्सेप्ट क्या है. अब जो तीसरी चीज हमारे पास आ रही है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द अनअर्न्ड रेवेन्यू. मैंने कहा था कि देयर आर 3 मेन इंपॉर्टेंट स्पॉन्टेनियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस, इन विच वन इज कॉल्ड एज अकाउंट पेएबल, सेकंड इज कॉल्ड एज accrued expenses, and third is called as the unearned revenue. Unearned revenue का मतलब क्या होता है कि sometime we are required to pay something in advance. ठीक है, if we are required to pay something in advance, it is our asset. But remember that being as a seller of the commodity, take a being as a seller of the commodity, you are going to receive something in advance, but if you have not delivered anything in exchange for it, then it will be considered as your liability, and this kind of revenue is called as a unearned revenue. This kind of revenue is called as a unearned revenue. Okay जी, ये अनअर्न्ड रेवेन्यू जो है ना, ये आएगा अब आपका. अब इसमें कहता है लायबिलिटी फॉर अनअर्न्ड रेवेन्यू अराइज व्हेन अ कस्टमर पे इन एडवांस. अपॉन रिसीट ऑफ एन एडवांस पेमेंट फ्रॉम अ कस्टमर, द कंपनी डेबिट द कैश एंड क्रेडिट द लायबिलिटी अकाउंट सच एज अनअर्न्ड रेवेन्यू और कस्टमर डिपॉजिट. ठीक है, फॉर इंस्टेंस दैट यू वुड लाइक टू बाय अ न्यू कार. ठीक है, फॉर दैट पर्पस यू विल हैव टू कॉन्टैक्ट विद टोयोटा, होंडा. तो होंडा वाले आपको कहते हैं कि ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू पे एटलीस्ट 50% ऑफ द प्राइस ऑफ द कार, देन वी आर रेडी टू गेट दिस कार बुक फॉर यू, बट वी विल डिलीवर यू दिस कार आफ्टर 6 months टाइम पीरियड. सो टुडे यू विल हैव टू पे 50% ऑफ इट. तो लेट्स सपोज दैट द प्राइस ऑफ द कार इज ऑफ 2 million, तो आपको उसका 10 लाख रुपया जमा कराना पड़ेगा. सो व्हाटएवर द मनी व्हिच इज रिसीव्ड बाय द सेलर इन दिस प्रोसेस विल बी कंसीडर्ड एज देयर लायबिलिटी. दिस इज कॉल्ड एज अनअर्न्ड रेवेन्यू. तो इसका मतलब है कि इन दिस प्रोसेस the seller is going to use the customer money in his own business and without any explicit cost in the form of interest. जी हाँ भाई, कुछ समझ लगा आप लोगों को ये क्या चीजें हैं? ठीक है, तो अब तक जो चीजें हमने पढ़ी हैं उसके अंदर ये है, हमने कहा कि हमारे पास जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हैं, ठीक है, हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि दोज ऑब्लिगेशन विच वी आर रिक्वायर्ड टू पे आइदर विद इन अ ईयर और विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लॉन्गर. एक चीज हमने ये डिस्कस की. फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि हमारे पास 2 किस्म की फाइनेंसिंग होती है. वन इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग, सेकंड इज कॉल्ड एज डिस्क्रिशनरी फाइनेंसिंग. ठीक है, so spontaneous financing means that those obligations that arise as a part of the normal business activity, it contain no explicit cost, however there is an implicit cost. अब इसमें हमने एग्जांपल डिस्कस की. 3 हमारे स्पॉन्टेनियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस हैं. वन इज योर अकाउंट पेएबल, सेकंड इज योर एक्रूड एक्सपेंसेस एंड थर्ड इज योर अनअर्न्ड रेवेन्यू. ठीक है, तो ये तीनों हमारे क्या हैं? दीज आर द स्पॉन्टेनियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग. ठीक, अब ये जो हमने नोट पेएबल का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, इट कम अंडर द हेड ऑफ द डिस्क्रिशनरी सोर्स ऑफ फाइनेंस. व्हाई इट कम अंडर द हेड ऑफ डिस्क्रिशनरी सोर्स ऑफ फाइनेंस? बिकॉज नोट पेएबल डज नॉट जनरेट ऑटोमेटिकली, एंड सेकंड थिंग इज द बोरोअर इज रिक्वायर्ड टू पे द एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, तो ये चीजें हैं जिसे हमने ध्यान में रखनी है कि ये क्या है. इसी तरह से जो हमारे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं, इसमें जो मोस्ट ऑफ द हमारे फाइनेंसेस के सोर्सेज हैं वो बुनियादी तौर पे क्या हैं? ऑल दे आर कंसिडर्ड एज अ डिस्क्रिशनरी सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस. ओके, अब लॉन्ग टर्म लोन के अंदर जरा थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म लोन के अंदर हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं. लॉन्ग टर्म लोन के अंदर जो है ना हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं. एक ऑप्शन को हम कहते हैं लॉन्ग टर्म डेट.
लॉन्ग टर्म डेट का मतलब क्या है कि दोज ऑब्लिगेशन टू होम अ कंपनी विल हैव टू सेटिस्फाई विद इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, और over a period of number of years, ठीक है, और in more than one accounting period, such kind of obligations are called as a long term financing. Okay, long term financing में आगे दो रास्ते निकलते हैं. One is called as a bank loan, fine, and second is called as your corporate bond. ठीक है, तो दो चीजें हैं, एक बैंक लोन की सिचुएशन है और एक कॉर्पोरेट बॉन्ड की सिचुएशन. ठीक है, तो ये जरा थोड़ा सा मैं इसमें मेरी सजेशन ये है कि इससे पहले कि मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ाऊं, आप जरा थोड़ा सा इसको खुद से बैठ के पढ़ो. ठीक है, और पढ़ने के बाद जो है ना देन कल की क्लास में हम इनको आगे लेके चलेंगे, लेकिन जरा जल्दी जल्दी के अंदर. ठीक है, लेकिन दिस विल ओनली बी बेनिफिशियल एट दैट पॉइंट इन टाइम इफ यू विल स्पेंड सम टाइम ऑन इट. इफ यू आर नॉट गोइंग टू स्पेंड सम टाइम ऑन इट देन इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द बॉन्ड. ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन राइट नाउ तो यू आर वेलकम टू आस्क द क्वेश्चन. और दूसरा ये है कि अभी ये जो लोग हैं ना जो हमारी क्लास में कम से कम आते हैं, आज भी 36 लोग हैं सिर्फ अटेंडेंस में. ठीक है ना, तो ये आपकी अटेंडेंस मैंने आज पकड़ी हुई है, सारी मैंने ले ली है. ठीक है, अब मैं आपको जो है ना 1 बाय 1 पॉइंट आउट करना शुरू कर दूंगा कि टोटल 51 लोगों में से कितने लोग हैं जो मेरी क्लास के अंदर आते हैं. ठीक है, 36 का मतलब 36 लोग हैं, तो 14 और एक 15 लोग आज भी एब्सेंट हैं. ओके, ठीक है, तो जरा इसको अच्छी तरह से बैठ के पढ़िएगा. और दूसरा ये है कि अब अगर आप अटेंडेंस को ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो मैं आपको जो है ना आपने जो ईमेल की लिस्ट है उसमें से माइनस करा दूंगा और पेपर भी नहीं मैं आपको दूंगा और उसमें से व्हाट्सएप में से भी आपकी छुट्टी करवाऊंगा ताकि आप फाइनल के पेपर में बैठ ही ना सकें. और अगर आपने लेट्स सपोज किसी ना किसी तरीके से पेपर लेके हमें जमा भी करा दिया तो हम उसको पहले नोटिफाई कराएंगे कि भाई यू आर नॉट अलाउड टू अपेयर इन द एग्जामिनेशन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ योर अटेंडेंस. ओके, so you are required to make sure you're present in the class. So I would like to see all of you present in this class. Okay, otherwise a strict action will be taken in this connection. आज है जनाब 20/20 इवनिंग सेकंड जी. 1 से लेके 10 तक कौन कौन है जी? 1 से 10 तक. 1 से लेके 10 तक कौन कौन से रोल नंबर मौजूद हैं? 10 है, 5 है, 4 है, हो गया 4. अच्छा जी, 11 से लेके 20 तक कौन कौन मौजूद है? 16 है, 17 है, 11 है, 12 है, 19 है, 18 है. ठीक है, ये होगा. उसके बाद 21 से लेके 30 तक, 21 से लेके 30 तक कौन कौन है? 24 है, बाबर अली. ओके, शाबाश. 31 से लेके 24 है, 25 है. उसके बाद है, फिर उसके बाद क्या है? सर 4 गलती से लिख दिया है, अब्दुल मतीन 3. चलो जी, 4 नहीं है तो 3 है. चले, 31 से 40 तक कौन कौन से लोग हैं? 31 से 40 तक 35 है, 36 है, 34 है, 31 है, 38 है, 37 है. ठीक है, 41 से लेके 50 तक कौन कौन है? 46 है, 43 है, 47 है, 50 है, 48 है, 49 है. चलो, उसके बाद 51 से लेके 60 तक कौन कौन से लोग हैं? 51 है, 52 है, 56 है, 55 है. उसके बाद 53 है. चले, उसके बाद 61 से लेके 70 तक जो लोग हैं, 61 है, 65 है, 62 है, 1867 है और 1863 भी है. और उसके बाद है 1764. ये रिपीटर है 1764 जी, उमर कादरी. और भाई को रिपीटर और हैं?